Welcome to FK Super Classes. Today's lecture is on science quiz. We will see some questions of science which is important for examination as well as for building the concepts. हम कुछ साइंस क्वेश्चंस के ज़रिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे. This is a tree. What is the question based on this tree? The tree which sends down root from its branches to the soil is known as. कौन सा पेड़ रूट को अपने ब्रांचेस से, अपने शाख से मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ भेजती है? यानी कि किस पेड़ का रूट ब्रांच से निकलकर मिट्टी में जाता है? Any guess? Let's see the options. Option A is oak, B is pine, option C is banyan, and option D is palm. So banyan is the tree which sends down root from its branches to the soil. So the correct answer is banyan tree. और बनियन ट्री के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेशन ये है कि दिस ट्री इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. बनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. और बनियन ट्री काफी इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. द ट्री विच सेंड्स डाउन रूट फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नोन एज बनियन ट्री. Banyan tree is the national tree of India. It is very beneficial from medical point of view. Next, we are seeing here bulb. So this question is based on bulb. What is the question? Electric bulb filament is made up of. इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज का बना होता है? दिस इज द फिलामेंट जो जलता है, जो रोशनी देता है, जो बर्न नहीं होता बट इट इमिट्स लाइट. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फिलामेंट एंड ऑफ विच मटेरियल दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ? एनी गेस? See the options. Copper, option A is copper, option B is aluminium, option C is lead, and option D is tungsten. So option D is the correct because the electric bulb filament is made up of tungsten material. और एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया, इन्वेंट किया, और उनको ये कामयाबी लगभग 2000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला. बार बार बल्ब जलाते थे बट द फिलामेंट जो है ब्लो डाउन हो गया, जल जाता था, लाइट एमिट नहीं करता था. थोड़ी देर के लिए लाइट दिया फिर जल गया. काफी मेहनत के बाद, काफी रिसर्च के बाद एडिसन साहब ने जो फिलामेंट का मटेरियल है वो बताया कि ये टंगस्टन का होना चाहिए. क्यों टंगस्टन का होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल और हम आपको बताते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. टंगस्टन. इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. प्योर टंगस्टन हैज सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ये जल्दी मेल्ट नहीं करता है. इट इज having the highest melting point that is around 3695 Kelvin. Kelvin और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू अराउंड 273.15 Kelvin. So this tungsten has the highest melting point, that's around 3695 Kelvin, lowest vapor pressure and greatest tensile strength
out of all the metals. Because of these properties, कौन सी properties? Highest melting point, lowest vapor pressure and greatest tensile strength. ये properties की वजह से it is the most commonly used material for light bulb filament. Next, periodic table. So this question will be based on the periodic table or any element from this periodic table. Let's see what is the question. The non-metal which is liquid at room temperature is. कौन सा non-metal liquid होता है room temperature पे? काफी important question एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी, कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. एनी गेस? You will get the answer from this periodic table. This element is present in this table. See the option. Fluorine, option A, option B, chlorine, option C, bromine, and option D is iodine. So right answer will be the bromine. Why bromine? See the concept. Why bromine is liquid at room temperature? Bromine is a chemical element with symbol Br and atomic number 35. It is the third lightest halogen and is a fuming red-brown liquid at room temperature that evaporates readily to form a similarly colored gas. Its properties are thus intermediate between those of chlorine and iodine. ब्रोमीन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है और उस लिक्विड का कलर क्या होता है ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इट इज रेड ब्राउन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फाइन. Bromine is a liquid because the intermolecular forces are strong enough so that it doesn't evaporate. इसका जो intermolecular forces है वो इतना ज़्यादा होता है कि evaporate नहीं कर सकता या ये evaporate नहीं कर पाता है. Bromine forms diatomic molecules and van der Waals interactions are sufficiently strong. van der Waal इंट्रैक्शन जो है ना वो इतना स्ट्रांग होता है कि इसको लिक्विड कंडीशन में रखता है एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट, अभी हमने नॉन मेटल के बारे में देखा कि ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेटल, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, इसमें हम आपको बताएंगे कि रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है. रूम टेम्परेचर का मतलब है कि जो टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो साइंटिफिकली. फाइन. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है. अभी हमने देखा नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है. Any guess from metal side? Which metal is liquid at room temperature? See the option. Copper A, option B gold, C mercury, D zinc. Yes, option C is the correct. Mercury is liquid at room temperature. So option C is the correct. Mercury is a liquid at room temperature because its electrons are tightly bound to the atomic nucleus. So mercury doesn't share electrons to other atoms. Room temperature is loosely defined term that can mean anywhere from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड. रफली जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं. फॉर साइंस इट्स यूजुअली कंसीडर्ड टू बी आइदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन साइंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए
क्या टेम्परेचर होना चाहिए? आइदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एट दिस टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड. सिर्फ 2 एलिमेंट लिक्विड होते हैं. जो पहले हमने नन मेटल के तौर पे ब्रोमीन को बताया आपको कि ब्रोमीन इज द नन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इस स्लाइड में आपने देखा कि मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो एट रूम टेम्परेचर विच इज डिफाइंड साइंटिफिकली 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at this temperature and ordinary pressure only 2 elements are liquid. ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट में इजाफा कीजिएगा कि ये 2 एलिमेंट ही लिक्विड होते हैं इस रूम टेम्परेचर पे, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ब्रोमीन नॉन मेटल जो हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया, एंड मरकरी मेटल है जो इस स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं. Although element cesium, rubidium, francium and gallium become liquid at or just above room temperature, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा होने पे एलिमेंट सीजियम, रुबीडियम, फ्रेंशियम एंड गैलियम भी मेल्ट कर जाता है, लिक्विड बन जाता है. नेक्स्ट, पेंसिल. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन from the concept of pencil. See the question, what is the concept behind this pencil? What is the question based on this construction of this pencil? Which of the following is used in pencil? कौन सी चीज पेंसिल में यूज होती है? ये काले काले जो दिख रहे हैं, what is this material? Fine. See the option. Option A is silicon, option B is graphite, option C is charcoal, and option D is phosphorus. Graphite is used in pencil, so option B is the correct. Graphite is used in pencil. Graphite and diamond are made up of carbon atoms. Graphite और diamond जो है ना, वो कार्बन के बने होते हैं. ग्राफाइट however is soft and can be used to write with, while diamond are the hardest substance known to man and are the only substance that can be used to cut other diamond. ग्राफाइट एक सॉफ्ट होता है और उसको हम लिखने के लिए यूज करते हैं, जबकि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है and the only substance that can be used to cut other diamonds. अगर दूसरे डायमंड को कट करना है तो हमें डायमंड से ही उसको कट करना होगा, बिकॉज किसी भी चीज को कट करने के लिए उससे ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा तभी कट होगा. सिंस डायमंड इज ऑलरेडी अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो एक डायमंड को काटने के लिए दूसरे डायमंड का ही यूज करना पड़ेगा आपको. वहीं पर ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, और इतना सॉफ्ट होता है कि वी कैन यूज टू राइट विथ ग्रेफाइट एंड यूज इन पेंसिल. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, एलोट्रोप्स. व्हाट इज एलोट्रोप्स? इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. दोनों में कार्बन एटम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब केमिकली तो दोनों सेम है, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, बट दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. दे आर पॉलीमॉर्फ्स. अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स में क्या हुआ कि सेम एलिमेंट के बने हुए हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगला चीज आ रहा, दे आर पॉलीमॉर्फ्स हैविंग द सेम केमिस्ट्री, सेम केमिकल कंपोजिशन, बट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर डिफरेंट. सो अगर आपसे एलोट्रोप्स पूछा जाए तब भी आप बता सकते हैं कि सेम एलिमेंट का बना हो बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. पॉलीमॉर्फ्स है क्यों?
because they have the same chemistry but the crystalline structure is different. So diamond and graphites are allotropes and also polymorphs. और डिटेल देखते हैं. Allotropes, same element having different physical properties. Same element having different physical properties but the same chemical properties. Allotropes किसको कहेंगे? सेम एलिमेंट का हो, having same chemical properties but different physical properties, तो क्या कहलाएंगे? एलोट्रोप्स कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर टू डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है ना, दो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है. दे आर डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट रिजेंबल कार्बन इन केमिकल प्रॉपर्टीज. फाइन, ये एलोट्रोप्स हो गए. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम एलिमेंट का बना हुआ बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एलोट्रोप्स हैं. पॉलीमॉर्फ्स किसको कहेंगे? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी इज दैट पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन टू क्रिस्टलाइज इन टू और मोर फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि एबिलिटी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन सेम होगा बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे. वहां एलिमेंट सेम हो रहे थे, ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों का एलिमेंट सेम है, C6C12 एलिमेंट है, तो एलोट्रोप्स भी हैं. पॉलीमॉर्फ क्यों है? बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म रिफर टू द एबिलिटी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन टू क्रिस्टलाइज इन टू और मोर फॉर्म्स. केमिकल कंपोजिशन सेम है. In contrast, allotropy refers to the ability of the element to exist in two or more molecular structures. Allotropy क्या है कि एलिमेंट का एबिलिटी एग्जिस्ट होना दो और दो से ज्यादा मोलिकुलर स्ट्रक्चर में. सिंस कार्बन के ही सिंस ग्रेफाइट एंड डायमंड both are made up of same element, कार्बन तो इसलिए एलोट्रोप्स हैं. सेम केमिकल कंपोजिशन है इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है दोनों में. ठीक है, तो यहां हमने कॉन्सेप्ट समझा पॉलीमॉर्फ के बारे में, एलोट्रोप्स के बारे में, और डिटेल में जाना कि ग्रेफाइट क्या है, डायमंड क्या है, डायमंड, एक डायमंड को काटने के लिए दूसरे डायमंड की जरूरत क्यों पड़ती है, पेंसिल में कौन सी एलिमेंट होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.